Julius Caesar Audiobooks 108, Making Shakespeare Easy and Accessible. Hello, before you get lost in the story, subscribe to the channel and turn on notifications. Thank you. Act 1, Scene 1. Rome. A street. Enter Flavius, Marullus, and certain commoners. Flavius, hence. Home. You idle creatures, get you home. Is this a holiday? What? No, you're not. Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak. What trade art thou? First commoner. Why, sir, a carpenter. Marullus, where is thy leather apron and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? You, sir, what trade are you? Second commoner. Truly, sir, in respect of a fine workman, I am but, as you would say, a cobbler. Marullus, but what trade art thou? Answer me directly. Second commoner. A trade, sir, that, I hope, I may use with a safe conscience, which is, indeed, sir, a mender of bad souls. Marullus, what trade, thou knave? Thou naughty knave, what trade? Second commoner. Nay, I beseech you, sir, be not out with me, yet, if you be out, sir, I can mend you. Marullus, what meanest thou by that? Mend me, thou saucy fellow. Second commoner. Why, sir, cobble you. Flavius, thou art a cobbler, art thou? Second commoner. Truly, sir, all that I live by is with thee all. I meddle with no tradesman's matters, nor women's matters, but with all. I am, indeed, sir, a surgeon to old shoes. When they are in great danger, I recover them. As proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. Flavius, but wherefore art not in thy shop today? Why dost thou lead these men about the streets? Second commoner. Truly, sir, to wear out their shoes, to get myself into more work. But, indeed, sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. Page 2. Marullus, wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome, to grace in captive bonds his chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things. O you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? Many a time and oft have you climbed up to walls and battlements, to towers and windows, yea, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day, with patient expectation, to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made an universal shout, that Tiber trembled underneath her banks, to hear the replication of your sounds made in her concave shores? And do you now put on your best attire? And do you now cull out a holiday? And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? Be gone. Run to your houses, fall upon your knees, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. Flavius, go, good countrymen, and, for this fault, assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber banks, and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. Exeunt all the commoners, see whether their basest metal be not moved, they vanish tongue-tied in their guiltiness. Go you down that way towards the Capitol, this way will I disrobe the images, if you do find them decked with ceremonies. Marullus, may we do so? You know it as the feast of Lupercal. Flavius, it is no matter, let no images be hung with Caesar's trophies. I'll about, and drive away the vulgar from the streets, so do you too, where you perceive them thick. These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch, who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness. Exeunt page 3. Scene -2, a public place. Flourish. Enter Caesar, Antony, for the coast, Calpurnia, Portia, Decius, Brutus, Cicero, Brutus, Cassius, and Cass, a great crowd following, among them a soothsayer Caesar, Calpurnia. Cass, peace, ho. Caesar speaks. Caesar, Calpurnia. Calpurnia, here, my lord. Caesar, stand you directly in Antonius' way, when he doth run his course. Antonius. Antony, Caesar, my lord. Caesar, forget not, in your speed, Antonius, to touch Calpurnia, for our elders say, the barren, touched in this holy chase, shake off their sterile curse.
Antony, I shall remember. When Caesar says, do this, it is performed. Caesar, set on, and leave no ceremoniute. Flourish, soothsayer. Caesar. Caesar, ha, who calls? Cas, bid every noise be still. Peace yet again. Caesar, who is it in the press that calls on me? I hear tongue, shriller than all the music, cried Caesar. Speak. Caesar is turned to hear. Soothsayer, beware the Ides of March. Caesar, what man is that? Brutus, a soothsayer bids you beware the Ides of March. Caesar, set him before me, let me see his face. Cassius, fellow, come from the throng, look upon Caesar. Page 4, Caesar, what sayest thou to me now? Speak once again. Soothsayer, beware the Ides of March. Caesar, he is a dreamer, let us leave him. Pass. Senate. Exeunt all except Brutus and Cassius. Cassius, will you go see the order of the course? Brutus, not I. Cassius, I pray you, do. Brutus, I am not gamesome, I do lack some part of that quick spirit that is in Antony. Let me not hinder, Cassius, your desires, I'll leave you. Cassius, Brutus, I do observe you now of late, I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was wont to have. You bear too stubborn and too strange a hand over your friend that loves you. Brutus, Cassius, be not deceived, if I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil perhaps to my behaviors. But let not therefore my good friends be grieved, among which number, Cassius, be you one, nor construe any further my neglect, than that poor Brutus with himself at war, forgets the shows of love to other men. Cassius, then, Brutus, I have much mistook your passion, by means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value, worthy cogitations. Tell me, good Brutus, can you see your face? Brutus, no, Cassius, for the eye sees not itself, but by reflection, by some other things. Cassius, 'tis just, and it is very much lamented, Brutus, that you have no such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eye, that you might see your shadow. I have heard, page -5, where many of the best respect in Rome, except immortal Caesar, speaking of Brutus and groaning underneath this age's yoke, have wished that noble Brutus had his eyes. Brutus, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me seek into myself for that which is not in me? Cassius, therefore, good Brutus, be prepared to hear. And since you know you cannot see yourself so well as by reflection, I, your glass, will modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of. And be not jealous on me, gentle Brutus. Were I a common laugher, or did use to stale with ordinary oaths my love to every new protester, if you know that I do fawn on men and hug them hard and after scandal them, or if you know that I profess myself in banqueting to all the rout, then hold me dangerous. Flourish, and shout, Brutus, what means this shouting? I do fear, the people choose Caesar for their king. Cassius, I, do you fear it? Then must I think you would not have it so. Brutus, I would not, Cassius, yet I love him well. But wherefore do you hold me here so long? What is it that you would impart to me? If it be aught toward the general good, set honor in one eye and death eye the other, and I will look on both indifferently, for let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death. Cassius, I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Well, honor is the subject of my story. I cannot tell what you and other men think of this life, but, for my single self, I had as lief not be as live to be in awe of such a thing as I myself. I was born free as Caesar, so were you, we both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he, for once, upon a raw and gusty day, page 6, the troubled Tiber chafing with her shores, Caesar said to me, darest thou, Cassius, now leap in with me into this angry flood, and swim to yonder point? Upon the word, accoutred as I was, I plunged in and bade him follow, so indeed he did. The torrent roared, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with hearts of controversy,
but ere we could arrive the point proposed, Caesar cried, "Help me, Cassius, or I sink." I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the waves of Tiber did I the tired Caesar. And this man is now become a god, and Cassius is a wretched creature and must bend his body, if Caesar carelessly but nod on him. He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how he did shake. 'Tis true, this god did shake, his coward lips did from their colour fly, and that same eye whose bend doth o'er the world did lose his lustre. I did hear him groan, aye, and the tongue of his that bury the Romans mark him and write his speeches in their books. Alas, it cried, "Give me some drink, Titinius," as a sick girl. Yea gods, it doth amaze me a man of such a feeble temper should so get the start of the majestic world and bear the palm alone. Shout. Flourish Brutus, another general shout. I do believe that these applauses are for some new honors that are heaped on Caesar. Cassius, why, man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable grouse. Men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. Brutus and Caesar, what should be in that, Caesar? Why should that name be sounded more than yours? Write them together, yours is as fair a name, sound them, it doth become the mouth as well. Weigh them, it is as heavy, conjure with M. Brutus will start a spirit as soon as Caesar. Page -7. Now, in the names of all the gods at once, upon what meat doth this our Caesar feed, that he is grown so great? Age, thou art shamed. Rome, thou hast lost the breed of noble bloods. When went there by an age, since the great flood, but it was famed with more than with one man? When could they say till now, that talked of Rome, that her wide walls encompassed but one man? Now is it Rome indeed and room enough, when there is in it but one only man? Oh, you and I have heard our fathers say, there was a Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. Brutus, that you do love me, I am nothing jealous, but you would work me too, I have some aim, how I have thought of this and of these times, I shall recount hereafter, for this present I would not, so with love I might entreat you, be any further moved. What you have said I will consider, what you have to say I will with patience hear, and find a time both meet to hear and answer such high things. Till then, my noble friend, chew upon this. Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us. Cassius, I am glad that my weak words have struck but thus much show of fire from Brutus. Brutus, the games are done and Caesar is returning. Cassius, as they pass by, pluck Cass by the sleeve, and he will after his sour fashion tell you what hath proceeded, worthy note today. Re-enter Caesar and his train Brutus. I will do so. But, look you, Cassius, the angry spot doth glow on Caesar's brow, and all the rest look like a chidden train. Calpurnia's cheek is pale, and Cicero looks with such ferret and such fiery eyes as we have seen him in the Capitol, being crossed in conference by some senators. Cassius, Cass will tell us what the matter is. Caesar Antonius. Page 8 Antony. Caesar. Caesar, let me have men about me that are fat, sleek-headed men and such as sleep o' nights. Yond Cassius has a lean and hungry look, he thinks too much, such men are dangerous. Antony, fear him not, Caesar, he is not dangerous, he is the noble Roman and well given. Caesar, would he were fatter. But I fear him not, yet if my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid so soon as that spare Cassius. He reads much, he is a great observer and he looks quite through the deeds of men. He loves no plays, as thou dost, Antony, he hears no music, seldom he smiles, and smiles in such a sort as if he mocked himself and scorned his spirit that could be moved to smile at anything. Such men as he be never at heart's ease whilst they behold a greater than themselves, and therefore are they very dangerous. I rather tell thee what is to be feared than what I fear, for always I am Caesar.
come on my right hand, for this here is deaf, and tell me truly what thou thinkst of him. Senate. Exeunt Caesar and all his train, but Cass. Cass, you pulled me by the cloak, would you speak with me? Brutus. I, Cass, tell us what hath chanced today, that Caesar looks so sad. Cass. Why, you were with him, were you not? Brutus. I should not then ask Cass what had chanced. Cass. Why, there was a crown offered him, and being offered him, he put it by with the back of his hand, thus, and then the people fell a shouting. Brutus. What was the second noise for? Cass. Why, for that too. Cassius. They shouted thrice. What was the last cry for? Cass. Why, for that too. Page 9. Brutus. Was the crown offered him thrice? Cass. I, married, what, and he put it by thrice, every time gentler than other, and at every putting by mine honest neighbors shouted. Cassius. Who offered him the crown? Cass. Why, Antony. Brutus. Tell us the manner of it, gentle Cass. Cass. I can as well be hanged as tell the manner of it. It was mere foolery, I did not mark it. I saw Mark Antony offer him a crown, yet 'twas not a crown neither, 'twas one of these coronets, and, as I told you, he put it by once, but, for all that, to my thinking, he would fain have had it. Then he offered it to him again, then he put it by again, but to my thinking, he was very loath to lay his fingers off it. And then he offered it the third time, he put it the third time by. And still as he refused it, the rabblement hooted and clapped their chapped hands and threw up their sweaty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar, for he swounded and fell down at it, and for mine own part, I durst not laugh, for fear of opening my lips and receiving the bad air. Cassius. But, soft, I pray you, what did Caesar swound? Cass. He fell down in the marketplace, and foamed at mouth, and was speechless. Brutus. 'Tis very like, he hath the failing sickness. Cassius. No, Caesar hath it not, but you and I. And honest Cass, we have the falling sickness. Cass. I know not what you mean by that, but, I am sure, Caesar fell down. If the tag rag people did not clap him and hiss him, according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theatre, I am no true man. Brutus. What said he when he came unto himself? Page -9. Cass. Marry, before he fell down, when he perceived the common herd was glad he refused the crown, he plucked me ope his doublet and offered them his throat to cut. And I had been a man of any occupation, if I would not have taken him at a word, I might go to hell among the rogues. And so he fell. When he came to himself again, he said, if he had done or said anything amiss, he desired their worships to think it was his infirmity. 3 or 4 ventures, where I stood, cried, alas, good soul! And forgave him with all their hearts, but there's no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. Brutus. And after that, he came, thus sad, away. Cass. I. Cassius. Did Cicero say anything? Cass. I. He spoke Greek. Cassius. To what effect? Cass. Nay, and I tell you that, il ne lucui, the face again, but those that understood him smiled at one another and shook their heads, but, for mine own part, it was Greek to me. I could tell you more news too. Marullus and Flavius, for pulling scarfs off Caesar's images, are put to silence. Fare you well. There was more foolery yet, if I could remember it. Cassius. Will you sup with me tonight, Cass? Cass. No, I am promised forth. Cassius. Will you dine with me tomorrow? Cass. I, if I be alive and your mind hold and your dinner worth the eating. Cassius. Good, I will expect you. Cass. Do so. Farewell, both. Exit Brutus. What a blunt fellow is thus grown to be. He was quick metal when he went to school. Page -11. Cassius. So is he now in execution of any bold or noble enterprise, however he puts on the sturdy form. This rudeness is a sauce to his good wit, which gives men stomach to digest his words with better appetite. Brutus. And so it is. For this time I will leave you. Tomorrow, if you please to speak with me, I will come home to you.
Or, if you will, come home to me, and I will wait for you. Cassius, I will do so. Till then, think of the world. Exit Brutus. Well, Brutus, thou art noble, yet, I see, thy honorable metal may be wrought from that it is disposed. Therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes. For who so firm that cannot be seduced? Caesar doth bear me hard, but he loves Brutus. If I were Brutus now and he were Cassius, he should not humor me. I will this night, in several hands, in at his windows throw, as if they came from several citizens, writings all tending to the great opinion that Rome holds of his name, wherein obscurely Caesar's ambition shall be glanced at. And after this let Caesar seat him show, for we will shake him, or worse days endure. Exit Scene 3. The same. A street. Thunder and lightning. Enter from opposite sides Cass, with his sword drawn, and Cicero. Cicero, good even, Cass, brought you Caesar home. Why are you breathless? And why stay you so? Cass, are not you moved, when all the sway of earth shakes like a thing unfirm? O Cicero, I have seen tempests, when the scolding winds have rived the knotty oaks, and I have seen the ambitious ocean swell in rage and foam, to be exalted with the threatening clouds, but never till tonight, never till now, did I go through a tempest dropping fire. Either there is a civil strife in heaven, or else the world, too saucy with the gods, and senses them to send destruction. Page -12 Cicero, why, saw you anything more wonderful? Cass, a common slave, you know him well by sight, held up his left hand, which did flame and burn like 20 torches joined, and yet his hand, not sensible of fire, remained unscorched. Besides I not since put up my sword against the Capitol I met a lion, who glared upon me, and went surly by, without unknowing me, and there were drawn upon a heap 100 ghastly women, transformed with their fear, who swore they saw men all in fire walk up and down the streets. And yesterday the bird of night did sit even at noonday upon the market-place, hooting and shrieking. When these prodigies do so conjointly meet, let not men say these are their reasons, they are natural, for, I believe, they are portentous things unto the climate that they point upon. Cicero, indeed, it is a strange disposed time, but men may construe things after their fashion, clean from the purpose of the things themselves. Come Caesar to the Capitol tomorrow. Cass, he doth, for he did bid Antonius send word to you he would be there tomorrow. Cicero, good night then, Cass, this disturbed sky is not to walk in. Cass, farewell, Cicero. Exit Cicero, enter Cassius. Cassius, who's there? Cass, a Roman. Cassius, Cass, by your voice. Cass, your ear's good. Cassius, what night is this? Cassius, a very pleasing night, two honest men. Page -13 Cass, whoever knew the heavens menaced so. Cassius, those that have known the earth so full of faults. For my part, I have walked about the streets, submitting me unto the perilous night, and, thus unbraced, Cass, as you see, have bared my bosom to the thunderstone, and when the cross-blue lightning seemed to open the breast of heaven, I did present myself even in the aim and very flash of it. Cass, but wherefore did you so much tempt the heavens? It is the part of men to fear and tremble, when the most mighty gods by tokens send such dreadful heralds to astonish us. Cassius, you are dull, Cass, and those sparks of life that should be in a Roman you do want, or else you use not. You look pale and gaze and put on fear and cast yourself in wonder, to see the strange impatience of the heavens. But if you would consider the true cause, why all these fires, why all these gliding hosts, why birds and beasts from quality and kind, why old men fool and children calculate, why all these things change from their ordinance their natures and preformed faculties to monstrous quality, why, you shall find that heaven hath infused them with these spirits, to make them instruments of fear and warning unto some monstrous state. Now could I, Cass, name to thee a man most like this dreadful night, that thunders, lightens, opens groves, and roars as doth the lion in the Capitol, a man no mightier than thyself or me in personal action, yet prodigious grown and fearful, as these strange eruptions are. Cass, 'tis Caesar that you mean, is it not, Cassius?
Cassius, let it be who it is, for Romans now have thews and limbs like to their ancestors, but, woe the while. Our fathers' minds are dead, and we are governed with our mothers' spirits, our yoke and sufferance show us womanish. Cass, indeed, they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king, and he shall wear his crown by sea and land, in every place, save here in Italy. Page -14 Cassius, I know where I will wear this dagger then, Cassius from bondage will deliver Cassius, therein, ye gods, you make the weak most strong, therein, ye gods, your tyrants do defeat, nor stony tower, nor walls of beaten brass, nor airless dungeon, nor strong links of iron, can be retentive to the strength of spirit, but life, being weary of these worldly bars, never lacks power to dismiss itself. If I know this, know all the world besides, that part of tyranny that I do bear I can shake off at pleasure. Thunder still Cass, so can I, so every bondman in his own hand bears the power to cancel his captivity. Cassius, and why should Caesar be a tyrant then? Poor man. I know he would not be a wolf, but that he sees the Romans are but sheep, he were no lion, were not Romans hinds. Those that with haste will make a mighty fire begin it with weak straws. What trash is Rome, what rubbish and what offal, when it serves for the base matter to illuminate so vile a thing as Caesar. But, O grief, where hast thou led me? I perhaps speak this before a willing bondman, then I know my answer must be made. But I am armed, and dangers are to me indifferent. Cass, you speak to Cass, and to such a man that is no fleeing telltale. Hold my hand, be factious for redress of all these griefs, and I will set this foot of mine as far as who goes farthest. Cassius, there's a bargain made. Now know you, Cass, I have moved already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise of honorable dangerous consequence. And I do know by this, they stay for me in Pompey's porch, for now, this fearful night, there is no stir or walking in the streets, and the complexion of the element in favors like the work we have in hand, most bloody, fiery, and most terrible. Cass, stand close a while, for here comes one in haste. Page -15 Cassius, 'tis Cinna, I do know him by his gait, he is a friend. Enter Cinna, Cinna, where haste you so? Cinna, to find out you. Who's that? Metellus Cimber. Cassius, no, it is Cass. One incorporate to our attempts. Am I not stayed for Cinna? Cinna, I am glad on t. What a fearful night is this. There's 2 or 3 of us have seen strange sights. Cassius, am I not stayed for? Tell me. Cinna, yes, you are. O Cassius, if you could but win the noble Brutus to our party. Cassius, be you content, good Cinna, take this paper, and look you lay it in the praetor's chair, where Brutus may but find it, and throw this in at his window, set this up with wax upon old Brutus' statue, all this done, repair to Pompey's porch, where you shall find us. Is Decius Brutus and Trebonius there? Cinna, all but Metellus Cimber, and he's gone to seek you at your house. Well, I will and so bestow these papers as your baremi. Cassius, that done, repair to Pompey's theatre. Exit Cinna, come, Cass, you and I will yet ere day see Brutus at his house, 3 parts of him is ours already, and the man entire upon the next encounter yields him ours. Cass, oh, he sits high in all the people's hearts, and that which would appear offense in us, his countenance, like richest alchemy, will change to virtue and to worthiness. Cassius, him and his worth and our great need of him you have right well conceited. Let us go, for it is after midnight, and ere day we will awake him and be sure of him. Exeunt. जूलियस सीजर ऑडियो बुक्स 108 शेक्सपियर को आसान और सुलभ बनाना। नमस्कार, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। एक्ट 1, सीन 1, रोम। एक सड़क। फ्लेवियस, मारुलस और कुछ कॉमनर्स फ्लेवियस को दर्ज करें, इसलिए घर, तुम निष्क्रिय प्राणी, तुम्हें घर ले आओ। क्या ये छुट्टी है? क्या आप नहीं जानते? यांत्रिक होने के नाते आपको अपने पेशे के संकेत के बिना एक श्रम दिवस पर नहीं चलना चाहिए। बोलो,
तुम क्या व्यापार करते हो? फर्स्ट कॉमनर क्यों? सर, एक बढ़ई। मारूलस, तुम्हारा चमड़े का एप्रन और तुम्हारा शासन कहाँ है? आप अपने सबसे अच्छे परिधान के साथ क्या पहन रहे हैं? आप, श्रीमान, आप किस व्यवसाय से हैं? दूसरा कॉमनर, सचमुच श्रीमान, एक अच्छे काम करने वाले के मामले में मैं, जैसा कि आप कहेंगे, एक मोची हूँ। मारूलस, लेकिन आप क्या व्यापार करते हैं? मुझे सीधे उत्तर दो। दूसरा कॉमनर, एक व्यापार श्रीमान, मुझे आशा है कि मैं सुरक्षित विवेक के साथ इसका उपयोग कर सकता हूँ, जो वास्तव में श्रीमान बुरे तलवों का सुधारक है। मारूलस, क्या व्यापार? तुम मूर्ख, तुम शरारती मूर्ख, क्या व्यापार? दूसरा कॉमनर, नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ श्रीमान, मेरे साथ बाहर न रहें। फिर भी यदि आप बाहर रहें श्रीमान, मैं आपको सुधार सकता हूँ। मारूलस, इससे आपका क्या तात्पर्य है? मुझे सुधारो, हे चतुर साथी। दूसरा कॉमनर, क्यों सर, आपको दबाते हैं? फ्लेवियस, तुम मोची हो क्या? दूसरा आम आदमी, सच में श्रीमान, मैं जो कुछ भी जीता हूँ वह सुए के साथ होता है। मैं न तो बनिया के मामलों में हस्तक्षेप करता हूँ, न ही महिलाओं के मामलों में, बल्कि सुए के साथ। सचमुच श्रीमान, मैं पुराने जूतों का सर्जन हूँ। जब वे बड़े खतरे में होते हैं तो मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। जितने अच्छे आदमी नीट के चमड़े को रौंदते थे, उतने ही अच्छे आदमी मेरी करतूत पर भी आए हैं। फ्लेवियस, लेकिन आजकल आपकी दुकान में क्यों नहीं है? तू इन मनुष्यों को सड़कों पर क्यों घुमाता है? दूसरा कॉमनर, सच में सर, अपने जूते घिसने के लिए, खुद को और अधिक काम में लगाने के लिए। लेकिन वास्तव में श्रीमान, हम सीजर को देखने और उसकी जीत पर खुशी मनाने के लिए छुट्टियां मनाते हैं। पेज 2। मारूलस, आनंद क्यों? कौन सी विजय उसे घर लाती है? कौन सी सहायक नदियां रोम तक उसका पीछा करती हैं, बंदी बंधन में अनुग्रह करने के लिए उसके रथ पहिए? तुम रोकते हो, तुम पत्थर मारते हो, तुम बेमतलब की चीजों से भी बदतर हो। हे कठोर हृदयों, तुम रोम के क्रूर मनुष्यों, क्या आप पोम्पी नहीं जानते थे? कई बार और बार बार क्या आप दीवारों और लड़ाइयों पर चढ़ गए हैं, टावरों और खिड़कियों तक, हाँ, चिमनी शीर्षों तक। तुम्हारे शिशु तुम्हारी गोद में हैं, और वहां बैठे हैं धैर्यपूर्ण आशा के साथ जीवन भर का दिन, महान पोम्पी को रोम की सड़कों से गुजरते हुए देखने के लिए। और जब तूने उसका रथ देखा, परंतु दिखाई दिया, क्या तुमने विश्वव्यापी चिल्लाहट नहीं की? वह टाइबर उसके किनारों के नीचे कांप रहा था, अपनी ध्वनियों की प्रतिकृति सुनने के लिए उसके अवतल तटों में निर्मित। और क्या अब आप अपना सर्वश्रेष्ठ परिधान पहनते हैं? और क्या अब आप छुट्टी मना रहे हैं? और क्या अब तुम उसकी राह में फूल बिछाते हो? ये पोम्पी के खून पर विजय के रूप में आता है। चले जाओ, अपने घरों की ओर भागो, घुटनों के बल गिरो, प्लेग को रोकने के लिए देवताओं से प्रार्थना करें। इस कृतघ्नता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। फ्लेवियस, जाओ जाओ अच्छे देशवासियों, और इस गलती के लिए अपनी जाति के सब कंगालों को इकट्ठा करो, उन्हें तिबर तट पर खींचो, और अपने आंसू रो चैनल में सबसे निचली धारा तक सभी के सबसे ऊंचे तटों को चूमो। सभी आम लोगों को निर्वासित करें, देखें कि क्या उनकी सबसे निचली धातु हिली नहीं है। वे अपने अपराधबोध में दबी जुबान से गायब हो जाते हैं। आप कैपिटल की ओर उस रास्ते पर जाएं। इस तरह मैं करूंगा, छवियों को निर्वस्त्र करें, यदि आप उन्हें समारोहों से सजा हुआ पाते हैं। मारूलस, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप जानते हैं कि यह लुपकल का पर्व है। फ्लेवियस, यह कोई बात नहीं है, कोई चित्र न होने दे, सीजर की ट्रॉफियों के साथ लटका दिया जाए। मैं इसके बारे में बताऊंगा, और अश्लीलता को सड़कों से दूर भगाओ। तो क्या आप ही ऐसा करते हैं जहां आप उन्हें मोटा समझते हैं? ये बढ़ते हुए पंख सीजर के पंख से टूट गए, उसे एक साधारण पे चुड़ा देंगे, और कौन मनुष्य की दृष्टि से ऊपर उठेगा, और हम सबको दास भय में रखो। कार्यकारी पेज 3 दृश्य -2 एक सार्वजनिक स्थान। फलना फूलना। सीजर दर्ज करें। एंटनी। पाठ्यक्रम के लिए कैल्पर्निया, पोर्टिया, डेसियस, ब्रूट्स, सिसरो, ब्रूट्स, कैसियस और कास्का। उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी, एक भविष्यवक्ता सीजर, कैल्पर्निया, कैस्का, शांति हो। सीजर बोलता है। सीजर, कैल्पर्निया,
कैल्पर्निया, यहाँ मेरे प्रभु। सीजर, आपको सीधे एंटोनियस के रास्ते में खड़ा करें जब वह अपना पाठ्यक्रम चलाता है। एंटोनियस, एंटनी, सीजर, मेरे प्रभु। सीजर, मत भूलो अपनी गति में एंटोनियस कैल्पर्निया को छूने के लिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बंज इस पवित्र पीछा में छुआ, उनके निष्फल अभिशाप को दूर करो। एंटनी, मुझे याद रहेगा जब सीजर कहता है ये करो तो यह निष्पादित होता है। सीजर, सेट करें और कोई समारोह न छोड़ें बाहर। फलना फूलना भविष्यवक्ता। सीजर, सीजर, हाँ, कौन बुलाता है? कैसका, हर शोर को शांत रहने के लिए कहें। फिर से शांति। सीजर, प्रेस में कौन है जो मुझे बुलाता है? मैं एक ऐसी जीप सुनता हूँ जो सारे संगीत से भी अधिक तीखी है। रो। सीजर, बोलना। सीजर सुनने के लिए उत्सुक है। भविष्यवक्ता, 15 मार्च को सावधान रहें। सीजर, वह कौन सा आदमी है? ब्रूट्स, एक भविष्यवक्ता कहता है कि आप मार्च की अशुभताओं से सावधान रहें। सीजर, उसे मेरे सामने खड़ा करो, मुझे उसका चेहरा देखने दो। कैसियस, साथ ही भीड़ में से आओ, सीजर को देखो। पेज -4। सीजर, अब तुम मुझसे क्या कहते हो? एक बार फिर बोलो। भविष्यवक्ता, 15 मार्च को सावधान रहें। सीजर, वह स्वप्नदृष्टा है, आइए हम उसे छोड़ दें, पास करें। सेनेट, ब्रूट्स और कैसियस को छोड़कर सभी को निर्वासित करें। कैसियस, क्या आप पाठ्यक्रम का क्रम देखने जाएंगे? ब्रूट्स, मैं नहीं। कैसियस, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, करो। ब्रूट्स, मैं गेमसम नहीं हूँ, मुझ में कुछ भूमिका की कमी है, उस त्वरित भावना का जो एंटनी में है। मुझे तुम्हारी इच्छाओं में बाधा न डालने दो। कैसियस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसियस, ब्रूट्स, मैं हाल ही में तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी दृष्टि से मुझ में वह सज्जनता नहीं है और प्रेम का प्रदर्शन जैसा मैं करना चाहता था। आप बहुत जिद्दी और बहुत अजीब हाथ सहन करते हैं अपने उस दोस्त के ऊपर जो आपसे प्यार करता है। ब्रूट्स। कैसियस, धोखा न खाओ, यदि मैंने अपना रूप छिपा रखा हो, मैं अपने चेहरे की परेशानी दूर कर देता हूँ केवल अपने ऊपर। मैं परेशान हूँ हाल ही में कुछ अंतर के जुनून के साथ, धारणाएं केवल मेरे लिए उचित हैं, जो शायद मेरे व्यवहार को कुछ आधार देते हैं, लेकिन इसलिए मेरे अच्छे दोस्त दुखी न हो। किस संख्या में? कैसियस, आप भी एक हो। नहीं, मेरी उपेक्षा का कोई और अर्थ निकालो, उस बेचारे ब्रूट से भी, जो स्वयं युद्ध में था, दूसरे पुरुषों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन भूल जाती है। कैसियस, फिर? ब्रूट्स, मैंने तुम्हारे जुनून को बहुत गलत समझा है, जिसके द्वारा मेरी यह छाती दब गई है, बहुत मूल्यवान विचारणीय विचार। मुझे बताओ, अच्छे ब्रूट्स, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? ब्रूट्स, नहीं। कैसियस, क्योंकि आंख स्वयं को नहीं देखती, लेकिन चिंतन से, कुछ अन्य चीजों से। कैसियस, ये बस, और यह बहुत शोकपूर्ण है। ब्रूट्स, कि आपके पास ऐसे कोई दर्पण नहीं है जो घूम जाए आपकी नजर में आपकी छुपी हुई योग्यता, ताकि तुम्हें अपनी परछाई दिख सके। मैंने सुना है, पेज -5, जहाँ रोम में बहुत से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान किया जाता है, अमर सीजर को छोड़कर, ब्रूट्स की बात करते हुए और इस युग के बंधन के नीचे कराहते हुए, काश कि ने ब्रूट्स की आंखें उसकी होती। ब्रूट्स, तुम मुझे किन खतरों में ले जाओगे? कैसियस, क्या आप मुझे अपने अंदर तलाशने के लिए प्रेरित करेंगे, उसके लिए जो मुझ में नहीं है? कैसियस, इसलिए, अच्छे ब्रूट्स, सुनने के लिए तैयार रहें, और चूंकि आप जानते हैं कि आप स्वयं को नहीं देख सकते इतनी अच्छी तरह से प्रतिबिंब से, मैं, तुम्हारा गिलास, विनम्रता पूर्वक अपने आप को खोज लेंगे अपने बारे में, वह जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। और मुझ पर ईर्ष्या मत करो, कोमल ब्रूट्स, क्या मैं आम हंसने वाला था, या प्रयोग करता था साधारण कसमों से बासी होना मेरे प्यार हर नए प्रदर्शनकारी को? यदि आप जानते हैं कि मैं पुरुषों पर फिदा होती हूँ और उन्हें जोर से गले लगाती हूँ और उन्हें बदनाम करने के बाद, या यदि आप जानते हैं कि मैं भोज करने में अपने को निपुण समझता हूँ सब परास्त करने के लिए, तो मुझे खतरनाक पकड़ लो, फूलो और चिल्लाओ। ब्रूट्स, इस चिल्लाने का मतलब क्या है? मुझे डर लगता है, लोगों से उनके राजा के लिए सीजर को चुने। कैसियस, आए, क्या तुम्हें इससे डर लगता है? तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा?
ब्रूट्स, मैं नहीं करूँगा। कैसियस, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम मुझे इतनी देर तक यहाँ क्यों रोके रखते हो? ऐसा क्या है जो आप मुझे प्रदान करेंगे? यदि यह सामान्य भलाई की ओर कुछ हो, एक आंख में सम्मान और दूसरी में मृत्यु निर्धारित करो, और मैं दोनों को उदासीनता से देखूंगा, क्योंकि देवता मुझे उतनी ही गति दे जितनी मैं चाहता हूँ। सम्मान के नाम से मुझे मौत से भी ज्यादा डर लगता है। कैसियस, मैं जानता हूँ कि वह गुण तुम में है। ब्रूट्स, साथ ही मैं आपके बाहरी उपकार को भी जानता हूँ। खैर, सम्मान मेरी कहानी का विषय है। मैं यह नहीं बता सकता कि आप और अन्य पुरुष क्या कहते हैं इस जीवन के बारे में सोचो, लेकिन मेरे अकेलेपन के लिए मैं उतना जीवंत नहीं था जितना मैं होना चाहता था। मैं स्वयं ऐसी चीज से आश्चर्यचकित हूँ। मैं सीजर के रूप में स्वतंत्र पैदा हुआ था, तो क्या आप भी थे? हम दोनों ने खाना भी खाया है और हम दोनों खा भी सकते हैं। सर्दी की ठंड को भी उसके समान सहन करें। एक बार एक कच्चे और तूफानी दिन पर, पेज 6, परेशान तिब्बर अपने तटों से झगड़ रही है। सीजर ने मुझसे कहा, अभी हिम्मत करो कैसियस, इस गुस्से भरी बाढ़ में मेरे साथ कूदो और उस बिंदु तक तैरना। शब्द पर मैं जैसा था वैसा ही तैयार होकर मैं इसमें कूद पड़ा और उसे अपने पीछे चलने को कहा। वास्तव में उसने ऐसा ही किया। धार दहाड़ने लगी और हमने उसे बुफे कर दिया कामुक नसों के साथ। इसे एक तरफ फेंकना और इसे विवाद के दिलों से उपजा रहा है। लेकिन क्या हम प्रस्तावित बिंदु तक पहुंच सकते हैं? सीजर चिल्लाया, मेरी मदद करो कैसियस, या मैं डूब जाऊंगा। मैं एनिस के रूप में, हमारे महान पूर्वज, क्या उसके कंधे पर ट्रॉय की आग की लपटों से पुराने एंचेस भालू हैं? इसलिए तिब्बर की लहरों से क्या मैंने सीजर को थका दिया? और यह आदमी अब एक देवता बन गया है, और कैसियस है एक मनहूस प्राणी और उसे अपना शरीर झुकाना होगा। यदि सीजर ने लापरवाही से उस पर सिर हिलाया। जब वह स्पेन में थे तो उन्हें बुखार था, और जब फिट उस पर था तो मैंने निशान लगाया उसने कैसे हिलाया। ये सच है, इस भगवान ने हिलाया। उसके काया होठों का रंग उड़ गया, और वही आंख जिसकी झुकने से दुनिया दंग रह जाती है, उसकी चमक खो गई। मैंने उसे कराहते हुए सुना, आए, और उसकी वह जीभ जिसने रोमियो को बुरा भला कहा, उन्हें चिन्हित करें और उनके भाषणों को अपनी पुस्तकों में लिखें। अफसोस, ये चिल्लाया, मुझे कुछ पे दो टिटेनियस, एक बीमार लड़की के रूप में। हे भगवान, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। ऐसा कमजोर स्वभाव के आदमी को होना चाहिए तो राजसी दुनिया की शुरुआत करें और अकेले ही हथेली सहन करो। चिल्लाना, फलना फूलना। ब्रूट्स, एक और सामान्य चिल्लाहट। मुझे विश्वास है कि ये तालियां हैं कुछ नए सम्मानों के लिए जो सीजर पर ढेर हो गए हैं। कैसियस, क्यों यार? वह संकीर्ण दुनिया से आगे निकल जाता है एक बादशाह की तरह, और हम छोटे आदमी उसके विशाल पैरों के नीचे चले और झांके अपने लिए अपमानजनक कब्रें ढूंढना। कुछ समय में पुरुष अपने भाग्य के स्वामी होते हैं। प्रिय ब्रूट्स, दोष हमारे सितारों में नहीं है, लेकिन अपने आप में कि हम मातहत हैं। ब्रूट्स और सीजर, उस सीजर में क्या होना चाहिए? वह नाम आपके नाम से अधिक क्यों सुना जाना चाहिए? उन्हें एक साथ लिखें, आपका नाम उतना ही उचित है। उन्हें ध्वनि दो, यह मुंह भी बन जाएगा। उन्हें तौलो, यह उतना ही भारी है। उनसे जादू करो, सीजर के समान ही ब्रूट्स एक भावना शुरू करेगा। पेज -7। अब एक साथ सभी देवताओं के नाम पर, हमारा सीजर इसे किस मांस से खिलाता है कि वह इतना बड़ा हो गया है? उम्र, तुम शर्मिंदा हो। रोम, तुमने महान रक्त की नस्ल खो दी है। जब एक युग तक वहां गए, महान बाढ़ के बाद से, लेकिन यह एक से अधिक व्यक्तियों के कारण प्रसिद्ध हुआ। वे अब तक कब कह पाए कि रोम की बात हुई, कि उसकी चौड़ी दीवारें सिर्फ एक आदमी को घेरती हैं? अब क्या ये वास्तव में रोम है और इसमें पर्याप्त जगह है, जबकि उसमें केवल एक ही मनुष्य हो? ओह, आपने और मैंने अपने पिताओं को ये कहते सुना है। एक बार एक ब्रूट्स था जिसने ब्रुक ड किया होगा रोम में अपना राज्य बनाए रखने के लिए। शाश्वत शैतान एक राजा की तरह आसानी से। ब्रूट्स, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। आप मुझे क्या काम देंगे? मेरा कुछ उद्देश्य है। मैंने इस बारे में और इस समय के बारे में कैसे सोचा है। मैं इसके बाद फिर से गिनूंगा इस उपहार के लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपसे प्यार से विनती कर सकता हूँ, और भी आगे बढ़ें।
आपने जो कहा है मैं विचार करूंगा, आपको क्या कहना है मैं धैर्यपूर्वक सुनूंगा और समय निकालूंगा। दोनों ऐसी ही ऊंची बातें सुनने और जवाब देने के लिए मिलते हैं। तब तक मेरे ने एक मित्र, इस पर ध्यान दे, ब्रूट्स को एक ग्रामीण बनना पसंद था, अपने आप को रोम के पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के बजाय इस समय जैसी कठिन परिस्थितियों में हमारे ऊपर बिछने जैसा है। कैसियस, मुझे खुशी है कि मेरे कमजोर शब्द ब्रूट्स की ओर से आग का इतना प्रदर्शन किया गया है। ब्रूट्स, खेल खत्म हो गए हैं और सीजर वापस आ रहा है। कैसियस, जैसे जैसे वे गुजरते हैं, कास्का को आस्तीन से तोड़ते हैं और वह अपने खट्टे फैशन के बाद आपको बताएगा आज जो कुछ हुआ वह ध्यान देने योग्य बात है। सीजर और उसकी ट्रेन को पुनः दर्ज करे ब्रूट्स। मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन तुम देखो कैसियस, सीजर के माथे पर क्रोध का धब्बा चमक रहा है और बाकी सब एक छिपी हुई ट्रेन की तरह दिखते हैं। कैल्पर्निया का गाल पीला पड़ गया है और सिसरो ऐसी भयंकर और ऐसी उग्र आंखों से दिखता है जैसा कि हमने उन्हें कैपिटल में देखा है, सम्मेलन में कुछ सेनेटरों द्वारा प्रतिवाद किया जाना। कैसियस, कैस्का हमें बताएगा कि मामला क्या है। सीजर एंटोनियस, पेज -8 एंटनी। सीजर, सीजर, मुझे अपने आसपास ऐसे आदमी रखने दो जो मोटे हों, चिकने सिर वाले और रात को सोने वाले पुरुष। योन कैसियस दुबला पतला और भूखा दिखता है, वह बहुत ज्यादा सोचता है। ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं। एंटनी, उससे मत डरो। सीजर, वो खतरनाक नहीं है, वह एक नेक रोमन और अच्छे इंसान है। सीजर, क्या वह मोटा होता? लेकिन मैं उससे नहीं डरता। तो अभी यदि मेरे नाम से भय होता, मैं उस आदमी को नहीं जानता जिससे मुझे बचना चाहिए। इतनी जल्दी उसने कैसियस को छोड़ दिया। वह बहुत पढ़ता है, वह एक महान पर्यवेक्षक है और वह देखते हैं बिल्कुल मनुष्य के कर्मों के कारण। उसे नाटक पसंद नहीं, जैसा कि आप करते हैं एंटनी। वह कोई संगीत नहीं सुनता, वह कभी कभार ही मुस्कुराता है और इसी तरह मुस्कुराता है मानो उसने अपना मजाक उड़ाया हो और अपनी आत्मा का तिरस्कार किया हो। उसे किसी भी बात पर मुस्कुराने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनके जैसे व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रहते जबकि वे अपने से बड़े को देखते हैं, और इसलिए क्या ये बहुत खतरनाक हैं। बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि डरने की क्या बात है। जिस चीज से मैं डरता हूँ, क्योंकि मैं सदैव कैसर हूँ, मेरे दाहिने हाथ आ, क्योंकि यह कान बहरा है। और मुझे सच में बताओ, क्या तुम उसके बारे में सोचते हो? सेनेट, एग्जेंट सीजर और उसकी सारी ट्रेन। लेकिन कास्का, कैस्का, तुमने मुझे लबादे से खींच लिया, क्या आप मुझसे बात करेंगे? ब्रूट्स, आए। कास्का, हमें बताओ आज क्या हुआ। वह सीजर बहुत उदास लग रहा है। कैस्का, क्यों? तुम तो उसके साथ थे ना? ब्रूट्स, फिर मुझे कैस्का से यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ था। कैस्का, क्यों? उसे एक मुकुट अर्पित किया गया था और अस्तित्व उसे पेशकश की। उसने इसे अपने हाथ के पिछले हिस्से से रख दिया, इस प्रकार, और फिर लोग चिल्लाने लगे। ब्रूट्स, दूसरा शोर किस लिए था? कैस्का, क्यों? उसके लिए भी। कैसियस, वे 3 बार चिल्लाए। आखिरी रोना किस लिए था? कैस्का, क्यों? उसके लिए भी। पेज -9 ब्रूट्स, क्या उन्हें 3 बार ताज पहनाया गया? कैस्का, आए, शादी करो, नहीं था, और उसने इसे 3 बार कहा। समय अन्य की तुलना में नर्म है और हर समय समय पर मेरे ईमानदार पड़ोसी चिल्लाए। कैसियस, उन्हें ताज किसने प्रदान किया? कैस्का, क्यों? एंटनी, ब्रूट्स, हमें इसका तरीका बताओ। सज्जन कैस्का, कैस्का, मुझे फांसी भी हो सकती है, इसकी विधि बताइए। यह महज मूर्खता थी, मैंने इसे चिन्हित नहीं किया। मैंने माँ को देखा। एंटनी ने उन्हें एक मुकुट प्रदान किया, फिर भी वह कोई मुकुट नहीं था, न तो इन कोरोनेट्स में से एक था, और जैसा कि मैंने बताया था आप, उसने इसे एक बार रखा, लेकिन उस सब के लिए मेरे लिए सोच रहा था, शायद उसे यह मिल गया होता। फिर वह उसे फिर से इसकी पेशकश की, फिर उसने इसे दोबारा रखा, लेकिन मेरी सोच के अनुसार वह अपनी बात रखने के प्रति बहुत अनिच्छुक था। इसे उंगलियां हटाओ। और फिर उसने इसे तीसरा पेश किया। समय, उसने इसे तीसरी बार रखा और अभी भी वह जैसा है इससे इनकार कर दिया।
भीड़ ने हूटिंग की और तालियां बजाईं, हाथ फट गए और पसीने से लथपथ नाइट कैप उतार फेंके और इतनी दुर्गंध भरी सांस इसलिए बोली सीजर ने उस मुकुट को अस्वीकार कर दिया जो लगभग घुट चुका था सीजर, क्योंकि वह घायल हो गया और उस पर गिर पड़ा। और मेरे अपने हिस्से के लिए मैं डर के मारे हंसने की हिम्मत नहीं करता, मेरे होंठ खुल रहे हैं और बुरी हवा मिल रही है। कैसियस, लेकिन नर्म, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। क्या? सीजर ने हमला किया। कैस्का, वह बाजार में गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, मुंह और अवाक था। ब्रूट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है, उसे असफल बीमारी है। कैसियस, नहीं, सीजर के पास यह नहीं है, लेकिन आप और मैं और ईमानदार कास्का, हमें गिरने वाली बीमारी है। कैस्का, मैं नहीं जानता कि आपका इससे क्या अभिप्राय है, लेकिन मुझे यकीन है सीजर नीचे गिर गया। यदि टैग्रेग लोगों ने नहीं किया जैसा उसे अच्छा लगे, उसके अनुसार ताली बजाओ और ताली बजाओ, उन्हें अप्रसन्न किया जैसा कि वे खिलाड़ियों के साथ करते थे। थिएटर, मैं कोई सच्चा आदमी नहीं हूँ। ब्रूट्स, जब वह अपने होश में आया तो उसने क्या कहा? पेज -9। कैस्का, इससे पहले कि वह गिर पड़े, शादी कर लो। जब उसे एहसास हुआ आमजुन खुश था कि उसने ताज को अस्वीकार कर दिया, उसने मुझे अपना दोना खींच लिया और उन्हें अपना दिया गला काटना। मैं किसी का आदमी था कब्जा, अगर मैंने उसे एक शब्द भी नहीं समझा होता। मैं चाहता हूँ कि मैं दुष्टों के बीच नरक में जाऊं। इसलिए वह गिर गया। जब वह पुनः अपने पास आया तो उसने कहा, यदि उसने कोई गलत काम किया है या कहा है, तो वह चाहता है उनकी पूजा, ये सोचने के लिए कि यह उनकी दुर्बलता थी। 3 या 4 लड़कियां, जहां मैं खड़ा था, चिल्लाए, अफसोस, अच्छा आत्मा। और उन्होंने उसे पूरे मन से क्षमा किया, परंतु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सीजर के पास होता उनकी माताओं पर छुरा घोंपा, उन्होंने भी कुछ कम न किया होता। ब्रूट्स, और उसके बाद वह इस प्रकार उदास होकर चला गया। कैस्का, आए, कैसियस, क्या सिसरो ने कुछ कहा? कैस्का, अरे, वह ग्रीक बोलता था। कैसियस, किस प्रभाव से? कैस्का, नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा फिर से सामना करें। लेकिन जो लोग उसे समझते थे वे मुस्कुराए, एक दूसरे से सिर हिलाया। लेकिन मेरे अपने लिए भाग, यह मेरे लिए ग्रीक था। मैं आपको और अधिक बता सकता हूँ, समाचार भी। मारुलस और फ्लेवियस, स्कार्फ खींचने के लिए सीजर की छवियों को बंद कर दिया गया है, चुप करा दिया गया है। आपका स्वागत है कुआं। यदि मैं कर सकता तो अभी और भी मूर्खताएं थी, ये याद करो। कैसियस, क्या तुम आज रात मेरे साथ खाना खाओगी? कास्का, कैस्का, नहीं, मुझसे वादा किया गया है। कैसियस, क्या तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे? कैस्का, आए, अगर मैं जीवित रहूं और आपका मन पकड़ सके और आपका रात्रिभोज हो खाने लायक। कैसियस, अच्छा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। कैस्का, ऐसा करो। अलविदा दोनों। बाहर निकलना। ब्रूट्स, ये कैसा मुंहफट आदमी हो गया है। जब वह स्कूल जाता था तो वह तेज तर्रार था। पेज -11। कैसियस, तो क्या वह अब निष्पादन में है किसी भी साहसिक या महान उद्यम का? हालांकि वह ये धीमा रूप धारण करता है। यह शिष्टता उसकी अच्छी बुद्धि के लिए चटनी है, जो पुरुषों को उनकी बातें पचाने के लिए पेट भर देता है, बेहतर भूख के साथ। ब्रूट्स, और इसलिए ही यह, इस समय के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कल, यदि आप मुझसे बात करना चाहेंगे, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, या यदि आप चाहें, मेरे पास घर आओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसियस, मैं ऐसा करूंगा। तब तक इसके बारे में सोचो दुनिया। बाहर निकलना। ब्रूट्स, अच्छा ब्रूट्स, तुम महान हो, फिर भी मैं देखता हूँ तेरा सम्मानन यह धातु गढ़ा जा सकता है, उसी से वह निस्तारित होता है, इसलिए वह मिलता है। वह नेक दिमाग हमेशा अपनी पसंद के साथ रहते हैं। कौन इतना दृढ़ है कि उसे बहकाया नहीं जा सकता? सीजर मुझे कठोरता से सहता है, लेकिन वह ब्रूट्स से प्यार करता है। यदि मैं अब ब्रूट्स होता और वह कैसियस होता, उसे मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं इस रात कई हाथों में उसकी खिड़कियों पर फेंको, मानो वे अनेक नागरिकों से आए हों। सभी लेखन महान मत की ओर प्रवृत्त है। वह रोम उसका नाम रखता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सीजर की महत्वाकांक्षा पर होगी नजर, और इसके बाद कैसर उसे निश्चित बैठाए।
क्योंकि हम उसे हिला देंगे, नहीं तो और भी बुरे दिन आएंगे। बाहर निकलना दृश्य 3। जो उसी एक सड़क, गर्जन और बिजली, विपरीत दिशाओं से प्रवेश करे, कास्का अपनी तलवार खींचकर, और सिसरो, अच्छा भी, कास्का, क्या तुम सीजर को घर ले आए? तुम बेदम क्यों हो, और तुम्हें इतना घूरकर क्यों देखते हो? कैस्का, क्या तुम द्रवित नहीं हो, जब पृथ्वी का सारा बोलबाला किसी चीज की तरह हिलाता है? हे सिसरो, मैंने तूफान देखे हैं, जब दांतती हुई हवाएं गांठदार बांझ के वृक्षों को तोड़ डाला है, और मैंने देखा है महत्वाकांक्षी सागर प्रफुल्लित और क्रोध और झाग खतरनाक बादलों के साथ ऊंचा होना, लेकिन आज रात तक कभी नहीं, अब तक कभी नहीं, क्या मैं तूफान में आग गिराते हुए गुजरा? या तो स्वर्ग में ग्रह कलह है, वरना दुनिया देवताओं के साथ बहुत अधिक विनम्र विनाश भेजने के लिए उन्हें भड़काता है। पेज -12 सिसरो, क्यों, क्या आपने इससे भी अद्भुत कोई चीज देखी? कैस्का, एक आम गुलाम, आप उसे देखने से अच्छी तरह जानते हैं। उसने अपना बायां हाथ पकड़ लिया, जिससे आग लग गई और वह जल गया जैसे 20 मशालें जुड़ी हों, और फिर भी उसका हाथ आग के प्रति संवेदनशील नहीं, झुलसे नहीं। इसके अलावा मैंने तब से अपनी तलवार नहीं उठाई है। कैपिटल के सामने मेरी मुलाकात एक शेर से हुई, जिसने मुझे घूर कर देखा और चुपचाप चला गया, मुझे परेशान किए बिना, और वहां खींचे गए थे एक ढेर पर 100 भयानक स्त्रियां, उनके भय से परिवर्तित, जिन्होंने शपथ खाई कि उन्होंने देखा है सभी पुरुष आग में जलते हुए सड़कों पर ऊपर नीचे चलते हैं। और कल रात की चिड़िया बैठी भी, यहाँ तक कि दोपहर के समय भी बाजार में हूटिंग और चीख पुकार। जब ये विलक्षण प्रतिभाएं ऐसा करो, एक साथ मिलो, पुरुष न कहे ये उनके कारण है, वे प्राकृतिक हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है वे अद्भुत चीजें हैं जिस जलवायु की ओर वे इशारा करते हैं। सिसरो, सचमुच यह एक अजीब सा समय है, लेकिन पुरुष अपने फैशन के अनुसार चीजों का अर्थ लगा सकते हैं, वस्तुओं के प्रयोजन से स्वयं को शुद्ध करें। सीजर कल कैपिटल में आए। कैस्का, वह ऐसा करता है क्योंकि उसने एंटोनियस पर बोली लगाई थी, तुम्हें सूचना भेज दूं कि वह कल वहां पहुंच जाएगा। सिसरो, फिर शुभ रात्रि। कास्का, यह अशांत आकाश अंदर चलना नहीं है। कैस्का, अलविदा। सिसरो, बाहर निकले। सिसरो दर्ज करे कैसियस, वहाँ कौन है? कैस्का, एक रोमन। कैसियस, कास्का, तुम्हारी आवाज से। कैस्का, आपका कान अच्छा है। कैसियस, ये कौन सी रात है? कैसियस, ईमानदार पुरुषों के लिए बहुत सुखदायक रात। पेज -13 कैस्का, स्वर्ग के खतरे को कभी कौन जानता था? कैसियस, जिन्होंने पृथ्वी को इतना दोषों से भरा हुआ जाना है। अपनी ओर से मैं सड़कों पर घूम चुका हूँ, मुझे खतरनाक रात के हवाले करते हुए, और इस प्रकार असंबद्ध। कास्का, जैसा कि आप देखते हैं, वज्र पत्थर के सामने अपनी छाती उघाड़ दी है, और जब क्रॉस नीली बिजली खुलने लगती है स्वर्ग की छाती, मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया, यहाँ तक कि लक्ष्य में भी और उसकी बहुत झलक में भी। कैस्का, परंतु तूने स्वर्ग की इतनी अधिक परीक्षा क्यों की? डरना और कांपना मनुष्यों का अंग है। जब सबसे शक्तिशाली देवता प्रतीकों द्वारा भेजते हैं हमें आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे भयानक संदेशवाहक। कैसियस, तुम सुस्त हो। कास्का, और जीवन की वो चिंगारी यह उस रोमन में होना चाहिए जो आप चाहते हैं, या फिर आप इसका उपयोग न करें। आप पीले दिखते हैं और देखते हैं, और डर रखो और अपने आप को आश्चर्य में डाल दो स्वर्ग की अजीब अधीरता देखने के लिए। लेकिन अगर आप सही कारण पर विचार करेंगे, ये सारी आग क्यों, ये सारे उड़ते भूत क्यों पक्षी और जानवर गुणवत्ता और दयालुता से, बूढ़े आदमी मूर्ख और बच्चे हिसाब किताब क्यों करते हैं, उनके अध्यादेश से ये सारी चीजें क्यों बदल जाती हैं, उनके स्वभाव और पूर्व निर्मित क्षमताएं राक्षसी गुणवत्ता के लिए क्यों, आप पाएंगे उस स्वर्ग ने उनमें ये आत्माएं भर दी हैं, उन्हें भय और चेतावनी का साधन बनाना किसी राक्षसी अवस्था तक। अब क्या मैं, कैस्का, तुम्हें एक आदमी का नाम बता सकता हूँ सबसे ज्यादा पसंद है ये खौफनाक रात। वह गरजता है, बिजली चमकाता है, कब्रें खोलता है और दहाड़ता है जैसा कि कैपिटल में शेर करता है। कोई भी व्यक्ति आपसे या मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है व्यक्तिगत कार्य में, फिर भी विलक्षण रूप से विकसित और भयावह, जैसे ये अजीब विस्फोट हैं।
कैसका, ती सीज़र जो आपका मतलब है, क्या यह नहीं है, कैसियस? कैसियस, जो है उसे वैसा ही रहने दो, के लिए अब रोमन उनके पंख और अंग उनके पूर्वजों के समान हो, लेकिन इस समय के लिए हाय, हमारे पिताओं का दिमाग मर चुका है और हम अपनी माताओं की आत्माओं से शासित हैं। हमारा जुए और कष्ट हमें नारीत्व दिखाते हैं। कैसका, दरअसल वे सेनेटरों कल कहते हैं सीज़र को राजा के रूप में स्थापित करने का मतलब, और वह अपना मुकुट समुद्र और भूमि पर धारण करेगा, हर जगह, यहाँ इटली में बचाओ। पेज -14। कैसियस, मैं जानता हूँ कि फिर मैं ये खंजर कहाँ पहनूंगा। कैसियस बंधन से छुड़ाएगा। कैसियस, वहाँ है देवताओं, तुम निर्बलों को अधिक से अधिक बलवंत बनाते हो, उसमें ही देवताओं, तुम अत्याचारियों को पराजित करो। न पथरीली मीनार, न पीटे हुए पीतल की दीवारें, न वायुहीन काल कोठरी, न लोहे की मजबूत कड़ियां। आत्मा की शक्ति के प्रति संवेदनशील हो सकता है, लेकिन जिंदगी, इन सांसारिक सलाखों से थककर स्वयं को खारिज करने की शक्ति की कभी कमी नहीं होती। यदि मैं ये जानता हूँ, तो इसके अतिरिक्त सारी दुनिया को भी जानता हूँ। अत्याचार का वह हिस्सा जिसे मैं सहन करता हूँ, मैं खुशी से झूम सकता हूँ। अभी भी गड़गड़ाहट कैसका, इतना कर सकते हैं कि मैं, इसलिए हर बंदा अपने ही हाथ में सहन करता है उसकी कैद को रद्द करने की शक्ति। कैसियस, और फिर सीज़र को अत्याचारी क्यों होना चाहिए? गरीब आदमी, मैं जानता हूँ वह भेड़िया नहीं होगा, लेकिन वह देखता है कि रोमवासी भेड़े हैं। वह कोई शेर नहीं थे, रोमन हिंद नहीं थे। जो उतावली करते हैं वे बड़ी आग भड़काएंगे। इसकी शुरुआत कमजोर तिनके से करें। रोम क्या कचरा है, जब ये परोसता है तो क्या बकवास और क्या अपमानजनक आधार पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए सीज़र जैसी घटिया चीज। लेकिन हे दुख, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं शायद यही बोलता हूँ एक इच्छुक बंधुआ से पहले, तो मुझे पता है मेरा उत्तर तो बनना ही चाहिए, लेकिन मैं हथियारबंद हूँ और खतरे मेरे प्रति उदासीन हैं। कैसका, आप कैसका से बात करते हैं, और ऐसे आदमी से यह कोई भागने वाली कहानी नहीं है। मेरे हाथ पकड़ें, इन सभी दुखों के निवारण के लिए सत्यनिष्ठ बनो, और मैं अपना ये पांव उतना ही दूर रखूंगा जैसे कौन सबसे दूर जाता है। कैसियस, एक सौदा हो गया है, अब तुम्हें पता है। कास्का, मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूँ। सबसे अच्छे दिमाग वाले रोमनों में से कुछ मेरे साथ एक उद्यम से गुजरना सम्मानजनक खतरनाक परिणाम का, और मैं जानता हूँ इससे वे मेरे लिए बने रहते हैं पोम्पी के बरामदे में। अभी के लिए ये भयावह रात, सड़कों पर कोई हलचल या चहलकदमी नहीं है, और तत्व का रंग हमारे हाथ में जो काम है उसके पक्ष में सबसे खूनी, उग्र और सबसे भयानक। कैसका, थोड़ी देर पास खड़े रहो, क्योंकि यहाँ कोई जल्दी में आता है। पेज -15। कैसियस, टिस्सिन्ना, मैं तो उसे उसकी चाल ढाल से जानता हूँ, वह एक दोस्त है। दर्ज करे। सिन्ना, सिन्ना, तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ है? सिन्ना, तुम्हारा पता लगाने के लिए। वो कौन है? मेटिलस सिम्बर। कैसियस, नहीं, ये कास्का है, एक हमारे प्रयासों में शामिल है। क्या मैं सिन्ना के लिए रुका नहीं हूँ? सिन्ना, मैं इस बात से खुश हूँ। ये कैसी भयावह रात है। हम में से 2 या 3 लोगों ने अजीब दृश्य देखे हैं। कैसियस, क्या मैं रुकने वाला नहीं हूँ? मुझे बताओ। सिन्ना, हाँ, आप हैं। हे कैसियस, यदि तुम कर सकते तो महान ब्रूट्स को हमारी पार्टी में जीत दिलाओ। कैसियस, आप संतुष्ट रहें। अच्छा सिन्ना, ये कागज ले लो, और देखो तुम इसे प्राइटर की कुर्सी पर रख दो, जहाँ ब्रूट्स इसे पा सकता है, और इसे उसकी खिड़की पर फेंक दो। इसे पुरानी ब्रूट्स की मूर्ति पर मोम से स्थापित करें। ये सब हो गया। पोम्पी के बरामदे की मरम्मत करें, जहाँ आप हमें पाएंगे। क्या डेसियस ब्रूट्स और ट्रेबोनियस वहाँ हैं? सिन्ना, मेटिलस सिम्बर को छोड़कर सभी, और वह तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढने गया है। ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, और जैसा आपने मुझसे कहा है, वैसे ही ये कागजात मुझे दे दीजिए। कैसियस, ये हो गया। पोम्पी के थिएटर की मरम्मत। सिन्ना से बाहर निकले। कास्का, आप और मैं अभी भी ब्रूट्स को उसके घर पर देखेंगे। उसके 3 हिस्से पहले से ही हमारे हैं, और अगले मुठभेड़ में पूरा आदमी उसे हमारा बना देता है। कैस्का, हे, वह सभी लोगों के दिलों में उच्च स्थान पर बैठा है।
और जो कुछ भी हमारे लिए अपराध प्रतीत होगा, उसका चेहरा सबसे अमीर कीमिया की तरह सद्गुण और योग्यता में बदल जाएगा। कैसियस, वह और उसका मूल्य और हमारी उससे बहुत बड़ी आवश्यकता, आपने ठीक ही अभिमान किया है। आओ हम चलें, क्योंकि आधी रात के बाद का समय है और एक दिन हम उसे जगाएंगे और उस पर निश्चिंत हो जाएंगे। कार्यकारी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।